Jai Hind students, myself Dr. Neeti Bansal, and today I am here with the second lecture on the in the series of complex lecture topics on IoT. So IoT is a subject which has been very recently introduced by AKTube. So we are exploring the complex lectures or the complex topics over this. So this is the second lecture in series on IoT devices and deployment models. So what are IoT devices and what are the various models in which we can use, which the we can say the service providers can use, the manufacturers can use to build IoT models. Internet of Things, IoT devices are nothing but the everyday physical objects. First of all, we need to understand this thing that when we talk about IoT devices, it is not something very different. It is a simple physical object which you use in your daily life. It can be a very simple object, okay? But that should be connected to internet and it should be able to share its data, okay? तब आप उसे IoT device की category में डालोगे. Even if this pen in my hand is having some sensor with the help of which it is able to communicate its data over internet to some particular position, to some central server, to some cloud, then I will call this pen in my hand as smart pen, as a smart object or as IoT device. Okay, so IoT device is something not very special. It is just a simple physical object around you which can be converted into an IoT device by embedding it with some technologies like sensors, like some Wi-Fi module connection and connectivity देने के लिए, ठीक है ना? So, unlike the traditional computers like desktop, laptops or smartphones, IoT devices are things like smart bulbs, sensors, cameras, fitness trackers may be there. Okay, so all these things can be categorized as IoT devices because they are capable of collecting the data, processing it, locally processing it, communicating it over internet to some central server or cloud. The idea behind IoT, what is the idea behind IoT? Is to bring internet connectivity to ordinary things that were not originally designated to be smart. This pen was not initially smart. I have made this pen smart by using the technologies, the power given to me by IoT. Okay, by inbuilding sensors in it, connecting it with some Wi-Fi module, I can transmit the data which is associated with this pen over the internet and can make this pen a smart pen. These devices are built with technology like sensors, sensor लगाना पड़ेगा, chips, network adapters that allow them to talk to each other or to the internet. ठीक है ना? क्या क्या पावर उनके पास होनी चाहिए? They must be capable of talking within themselves. That means communicating or sharing data among themselves or through the internet. Be controlled from a distance. They must be controlled or they must be monitored over a distance. Remote monitoring or control जैसे हम कहते हैं, ठीक है ना? तो जब तक हम इन डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये रिमोटली मॉनिटर नहीं हो सकते, तब तक ये रिमोटली कंट्रोल नहीं हो सकते. They should send or receive the information automatically. मतलब उनको कोई भी इंफॉर्मेशन भेजने के लिए या रिसीव करने के लिए किसी मैनुअल इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है. They can do that automatically. For example, a smart thermostat in your home can learn your habits, adjust the temperature and control from your phone, even when you are not at home. Okay, so this is an example of a smart home, a thermostat. Let us say we take the example of smart lighting in case of a smart home. So we have put sensors in a room, motion sensors, let's say. Whenever you walk into your room, the lighting is on because the motion sensors have detected that motion, that some human being is there. That motion sensor has communicated this thing to the lights, to the smart fans, to the smart lights, and these smart lights and fans, they have an automated mechanism that they will turn on whenever they will receive a signal from the motion sensors. Okay, so this is a kind of IoT application, and all these devices, the smart bulb, the smart fan, the motion sensors, they all are the IoT devices. So how does the IoT devices work? IoT devices may come in many forms.
बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि हमने अभी बात करी, स्मार्ट बल्ब भी हो सकता है, स्मार्ट फैन भी हो सकता है, स्मार्ट पेन भी हो सकता है ना, सेंसर भी हो सकता है। तो लेकिन उनमें कुछ चीजें कॉमन भी हैं, उनके ऑपरेट करने का तरीका कॉमन है। क्या क्या कॉमन है? दे इंटरैक्ट विद द रियल वर्ल्ड, दे विल interact with the real world. This pen will interact with me if it needs to be converted into smart pen. This fan needs to be interactive with me, with the real world. These devices gather data from their surroundings. For example, a smart security camera watches your home and detects movement. Sensor in a factory monitors temperature or pressure. तो इनको बाहरी दुनिया के साथ इंटरैक्ट करना ही पड़ेगा सो दैट दे कैन गैदर द इंफॉर्मेशन। दे हैव अ बिल्ट इन टेक्नोलॉजी। अब ये अपने आप से तो ये सब चीजें कर नहीं लेंगे, उसके लिए इनके अंदर कुछ बिल्ट इन टेक्नोलॉजी की जरूरत भी पड़ेगी। ओके, दे मस्ट हैव अ बिल्ट इन टेक्नोलॉजी। वो क्या हो सकती है? देयर कैन बी अ स्मॉल सीपीयू, दैट इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है इसके अंदर कोई, अ नेटवर्क अडेप्टर that connects to Wi-Fi or Bluetooth, connectivity module चाहिए इसको कुछ, firmware, firmware is the software that controls how the device works. Okay, so all the smart devices or all the IoT devices must have these common features. They must have some built-in technologies including CPU, which may be microcontroller processor. It must have firmware, the software which is controlling its operation, and a network connectivity adapter which connects it to the network using Bluetooth or Wi-Fi or any other protocol. They connect to a network. अब इनको एक नेटवर्क के साथ भी कनेक्ट करना पड़ेगा so that they can communicate their data. Most of the devices connect to a private network and get an IP address just like your computer does so that they can communicate. ठीक है ना? तो ये IoT डिवाइसेस भी आपके कंप्यूटर की तरह ही एक IP एड्रेस ऑब्टेन कर लेते हैं और यूनिक एड्रेस की हेल्प से दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर और थ्रू द ओवर द इंटरनेट। दे कैन बी कंट्रोल्ड रिमोटली। आप इनको रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप फिजिकली उस डिवाइस के सामने प्रेजेंट हों। फॉर एग्जाम्पल, आजकल कुछ कार्स आती हैं जिनमें इस तरह के सेंसर्स होते हैं कि आप घर से निकलने से 10 मिनट पहले या ऑफिस से निकलने से 10 मिनट पहले ही अपने कार का एसी ऑन कर सकते हो, जिससे कि जब तक आप कार खोलो वहां तक पहुंचो 10 मिनट बाद, तब तक आपकी कार का टेम्परेचर एकदम सूटेबल हो फॉर सिटिंग। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड रिमोट कंट्रोल। अगर आप अपने डिवाइस को रिमोट कंट्रोल कर पा रहे हो, देन इट विल बी कैटेगराइज्ड एज ए IoT डिवाइस और अ स्मार्ट डिवाइस। Many devices are managed through apps on your phone or computer. Some devices even have their built-in web page and you can control them without needing a separate app. Okay, so you can control your devices through your smartphones, through your laptops, through some web application. Next, move करते हैं deployment models पे। तो हमने समझ लिया IoT device है क्या, what will be the common features of them, और how will you categorize whether a particular device is smart device, IoT device or not. Okay, next is IoT deployment models. Deployment मतलब, deployment means how will you implement that particular application. आप real world में उसको कैसे deploy करोगे, कैसे उसको implement करोगे, ठीक है, that is deployment model. So deployment model of an IoT system defines how the devices connect, communicate and interact within a network. ठीक है ना, तो पूरा प्रोसेस डिफाइन करना, उसका पूरा उसका इम्प्लीमेंटेशन, डिप्लॉयमेंट मॉडल डिस्क्राइब करना, दैट कम्स अंडर द डिप्लॉयमेंट मॉडल्स. इट डिक्टेट्स द आर्किटेक्चर, द डेटा फ्लो एंड द कंट्रोल मैकेनिज्म. तो सबसे सिंपल और सबसे पहला मॉडल जो हमारा हो सकता है आईओटी डिप्लॉयमेंट के लिए, दैट इज कॉल्ड D2D और डिवाइस टू डिवाइस मॉडल. ओके, D2D और डिवाइस टू डिवाइस मॉडल. तो नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, दैट मीन्स इन दिस मॉडल देयर विल बी अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस, टू IoT devices or more IoT devices. Okay, so in this model the devices communicate directly with each other, typically within a local network without needing a central hub or cloud. अब यहाँ पे आपको क्लाउड की जरूरत नहीं है, you don't need a cloud in between, क्योंकि यूजर इंटरफेस ऐसा जिसमें डायरेक्टली नहीं आ रहा है, दो डिवाइसेस ही आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं इन अ लोकल एरिया.
टेक्नोलॉजीज क्या क्या यूज होंगी? द प्रोटोकॉल विच विल बी डिप्लॉयड हियर, द प्रोटोकॉल्स विच विल बी यूज्ड हियर आर ब्लूटूथ यूज हो सकता है, ZigBee यूज हो सकता है, Z-Wave एंड वाईफाई. So all these protocols are basically low range protocols. ये short range protocols होते हैं जो एक local area में काम करते हैं. That's why they are good for device to device communication models. ठीक है? Example, a smart thermostat. एक smart thermostat हो सकता है which is directly controlling a smart vent based on temperature readings. Thermostat temperature reading लेता जा रहा है और एक smart vent को auto पे control कर रहा है. So it is a model between two devices, a thermostat and a smart vent. Both of them are communicating with each other. Smart light bulbs communicating with motion sensors. ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिया था इस लेक्चर के स्टार्टिंग में कि आपने अपने रूम में मोशन सेंसर लगाए हैं. जैसे ही आप रूम में वॉक किए, मोशन सेंसर ने डिटेक्ट किया, मोशन सेंसर ने लाइट बल्ब को सिग्नल भेजा और लाइट बल्ब जल गया. सो दिस इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस. एक डिवाइस है आपका मोशन सेंसर और दूसरा डिवाइस है आपका लाइट बल्ब. ओके, सो दिस इज कॉल्ड डिवाइस टू डिवाइस मॉडल. एडवांटेज क्या हो सकते हैं इसके? लो लेटेंसी. लेटेंसी का मतलब होता है डिले, मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है वो फास्ट होगी, उसमें कोई डिले नहीं आएगा. एज डिवाइसेस कम्युनिकेट डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे डिवाइसेस आपस में ही डायरेक्टली कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व. रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन क्लाउड कनेक्टिविटी, क्योंकि क्लाउड की जरूरत ही नहीं पड़ी तो हमें क्लाउड की कनेक्टिविटी की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है. द सिस्टम इज वेरी सिंपल बिटवीन टू डिवाइसेस इन अ लोकल एरिया. यूज केस कहाँ आता है इसका? इसका यूज केस आता है स्मार्ट होम में, स्मार्ट होम ऑटोमेशन में और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में भी इसका यूज आप कर सकते हैं. सेकेंड इज डिवाइस टू क्लाउड मॉडल. नाउ वी हैव डिवाइस टू क्लाउड, मतलब डिवाइसेस होंगे, ठीक है ना, और दूसरा एलिमेंट क्या होगा? क्लाउड. डिवाइस को अपना डाटा कलेक्ट करके क्लाउड पे पहुंचाना और क्लाउड से कोई यूजर कनेक्टेड होगा, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो लेट अस सी. IoT devices communicate with the cloud platforms to store, process and analyze the data. And control and management are also done via the cloud. So here cloud has come into picture and the IoT devices are gathering the data, transmitting it to the cloud. Cloud plays a major role of storing, analyzing and performing data processing. कौन-कौन से प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं हम यहाँ? The technologies or the protocols used here will be MQTT, which stands for Message Queuing Telemetry Transport Protocol. Okay, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, AMQP. This is the version of it. AMQP and CoAP. CoAP stands for Constrained Application Protocol. So these are the protocols, various standards or technologies which can be used for this kind of establishing this kind of model between a device and cloud. Example, smart home security camera, sending data to cloud for storage and remote monitoring. Very simple. For example, I have a CCTV cameras in my home. They are taking the live feed, and while sitting in my office here, I can just use my smartphone. By opening a single app, I am able to monitor my entire home through these CCTV cameras. Okay. Wearables like fitness trackers, uploading data to cloud-based platform for analysis. आपने कोई wearable fitness belt पहनी है, कोई घड़ी पहनी है जो कि wearable फॉर्म में आपको एक डिवाइस प्रोवाइड कर रही है which can track your vitals, और उस डाटा को वो रेगुलरली क्लाउड पे अपलोड कर रहे हैं एनालिसिस के लिए. एडवांटेजेस क्या क्या होंगे इसके? स्केलेबल है ये टेक्नोलॉजी. स्केलेबल क्यों? स्केलेबल का मतलब क्या होता है? स्केलेबल टेक्नोलॉजी वो होती है जिसमें आप नंबर ऑफ डिवाइसेस ऐड करते जाएं तब भी उसकी परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना. तो ये स्केलेबल है क्योंकि यहाँ पे क्लाउड इन्वॉल्व है. क्लाउड इज अ बिगर पिक्चर वेयर लॉट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड, एनालाइज्ड, प्रोसेस्ड. उसकी कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा हो जाती हैं. दैट्स व्हाई वी से इट इज स्केलेबल सोल्यूशन, एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर वाया द इंटरनेट. ऑब्वियसली जहां पे भी इंटरनेट कनेक्टिविटी है आप वहीं से अपना घर चेक कर सकते हो. अपना मोबाइल से इंटरनेट कनेक्ट करना है आपको और ऐप के थ्रू आपको अपना पूरा घर मॉनिटर आप कर सकते हो. दिस इज डिवाइस टू क्लाउड मॉडल. यूज केस कहाँ कहाँ आता है इसका? स्मार्ट होम्स में आता है, हेल्थ मॉनिटरिंग में आता है, कनेक्टेड व्हीकल्स एंड स्मार्ट सिटीज.
नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ मॉडल इज डिवाइस टू गेटवे. अब हम जा रहे हैं डिवाइस से लेकर के गेटवे की तरफ. नाउ इन दिस केस, इन दिस मॉडल, द IoT devices communicate with the local gateway or edge device. अब जो IoT devices हैं वो local gateway से connect कर रहे हैं, which can perform local data processing and then forward relevant information to cloud or central system. There can be a cloud involved here also, but not directly. The devices are not directly connected to the cloud like in the previous one. In this case, the device is connected to cloud directly without the use of IoT gateway. Here, device to gateway means the device is first connected to gateway and then to the cloud. Like this. For example, here we have sensors. These are the IoT devices. ये हो गए आपके devices जिन्हें हम कह रहे हैं D. ठीक है. फिर बीच में लगा है मेरा gateway IoT का, which is acting like a bridge in between. इसको हम कह रहे हैं G. और यहाँ पे है मेरा cloud. ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं C. So this is device to gateway model. टेक्नोलॉजीज क्या क्या यूज कर सकते हो इसके लिए? वाईफाई, इथरनेट, लोरा, जिगबी, ब्लूटूथ. लोरा स्टैंड्स फॉर लॉन्ग रेंज. It is a protocol used for long range wireless communication in IoT. इसके एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल IoT सिस्टम्स में यूज होता है, वेयर मशीन्स, इंडस्ट्री में जो मशीन्स लगी होती हैं, दे कैन सेंड डेटा टू एज गेटवे फॉर प्री प्रोसेसिंग बिफोर ट्रांसमिशन टू क्लाउड. है ना, मतलब जो डिवाइसेस ने सेंसर्स ने डेटा कलेक्ट किया मशीनरी का, वो गेटवे को भेजा, गेटवे ने प्री प्रोसेसिंग करके कुछ डेटा रिमूव कर दिया, रिडंडेंट कुछ रहने दिया और उसको क्लाउड पे पुश किया. स्मार्ट होम हब्स एक्टिंग एज गेटवेज फॉर वेरियस स्मार्ट डिवाइसेस. इसके क्या क्या एडवांटेज हैं? इट रिड्यूसेस द डेटा टू बी सेंड टू द क्लाउड. ठीक है ना, जो क्लाउड पे आप एक बहुत बड़े अमाउंट का डाटा भेज रहे थे, उसने इसको रिड्यूस कर दिया. बैंडविड्थ यूसेज में ऑब्वियसली मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि जब हम अमाउंट ऑफ डेटा को रिड्यूस कर रहे हैं गेटवे पे प्री प्रोसेसिंग करा के, वी विल सेव द बैंडविड्थ एंड वी विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डेटा. Improves responsiveness. इसका यूज केस कहां आता है? इंडस्ट्रियल IoT में, एग्रीकल्चर में, स्मार्ट एग्रीकल्चर आजकल काफी ट्रेंड में है, एनर्जी मैनेजमेंट में, स्मार्ट बिल्डिंग्स में. सो दिस इज डिवाइस टू गेटवे मॉडल, वेयर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू गेटवे फर्स्ट एंड देन टू क्लाउड एंड नॉट डायरेक्टली टू द क्लाउड. देन वी हैव बैकएंड शेयरिंग मॉडल. ये क्या है? In this model, devices share data with multiple backend services, okay, enabling cross system integration and collaboration. Basically इसका जो use case आता है वो smart cities में ज्यादा आता है, in which what we are doing is a smart city infrastructure is there which is sharing data from traffic sensors with multiple city management systems. है ना, एक मान लीजिए आप अब एक स्मार्ट होम की बात नहीं कर रहे हैं, अब आप एक स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं. अब एक स्मार्ट सिटी में तो हर चीज, उसका हर जो डिवीजन है वो स्मार्ट होना चाहिए, है ना. तो उसका ट्रैफिक मैनेजमेंट भी स्मार्ट होना चाहिए, उसका वेस्ट कलेक्शन जो एक प्रोसेस है वो भी स्मार्ट होना चाहिए, IoT रिलेटेड होना चाहिए. तो उसकी हर एक इंडिविजुअल एंटाइटी स्मार्ट है. अब वो आपस में डिफरेंट IoT सेक्शंस, हाउ विल दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, वो आपस में कैसे इंटरैक्ट करें? So for that they need a back end sharing model. ठीक है ना, तो उनको चाहिए एक back end sharing model with multiple back end services they can connect, और cross system integration और collaboration उसमें हम establish कर सकें. इसमें क्या टेक्नोलॉजीज यूज होंगी? API driven data sharing. API stands for application programming interface, means how the program application will interface with the program, communicate with the program, and secure web services are there. सो एग्जाम्पल हमने समझ ही लिया, स्मार्ट सिटी का एग्जाम्पल है जिसमें उसकी डिफरेंट यूनिट स्मार्ट है. अब उन डिफरेंट यूनिट्स को आपस में कम्युनिकेट करना है. स्मार्ट सिटी को तो पूरा होल पिक्चर एक साथ लेके चलना है. तो हाउ विल इट हैपन? वो आपस में कैसे क्रॉस प्लेटफॉर्म आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, आपस में डेटा कैसे शेयर करेंगे? हेल्थ केयर डिवाइसेस शेयरिंग पेशेंट डेटा विद डिफरेंट मेडिकल सिस्टम्स, डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स. आपने एक हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म बना दिया, पेशेंट्स का डाटा लिया और आप उसे मल्टीपल लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हो. तो इसमें आपको कितने सारी चीजों की जरूरत पड़ गई. पेशेंट से भी कनेक्ट करना है, नर्स से भी कनेक्ट करना है, ठीक है, डॉक्टर से भी कनेक्ट करना है,
फॉर एग्जाम्पल फार्मेसी वाले से भी कनेक्ट करना है मेडिसिन एडवाइस करने के लिए. सो देयर इज अ डिफरेंट IoT sections which need to work in collaboration. Okay, so they will require back-end sharing model. Advantages क्या हैं इसके? It enables cross-platform data analysis. Different platforms के बीच में हमें data analysis करने का मौका मिल जाता है इससे. It enhances collaboration between independent systems. अलग अलग छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैं, उनके बीच में आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं. यूज केसेस कहाँ पे आ जाएंगे इसके? स्मार्ट सिटी हमने डिस्कस किया, हेल्थ केयर सिस्टम हमने डिस्कस किया, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. देन वी हैव एज कंप्यूटिंग मॉडल. सो एज कंप्यूटिंग क्या है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था इस सीरीज का, उसमें भी समझाया था. इन शॉर्ट आई कैन ऑल्सो डिस्कस हेयर. सो दीज आर माई सेंसर्स, दिस इज माई गेटवे, ये डिवाइस हो गया, ये जी हो गया, और ये हो गया मेरा सी क्लाउड. ठीक है ना, ऐसा कुछ मॉडल है. तो सारा का सारा डाटा यहां से यहां पुश करने की जगह अगर मैं यहाँ पे एज डिवाइसेस यूज कर लूं, कुछ इस तरह के डिवाइसेस यहाँ पे यूज कर लूं जिसे हम एज डिवाइस कहते हैं, और उन डिवाइसेस से कहूं कि आप लोकली मेरे डेटा की प्री प्रोसेसिंग कर दो, है ना, और डेटा को रिड्यूस कर दो, रिडंडेंट डेटा हटा दो, जो कुछ डेटा एनॉमली आ गया है वो हटा दो डेटा, है ना, और एग्रीगेट कर दो. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 30 मिनट्स का डाटा एग्रीगेट करके भेज दो. तो व्हाट विल यू डू? यू विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डेटा विच हैज टू बी पुश्ड ओवर द क्लाउड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंप्यूटिंग. इसको हम कहते हैं एज कंप्यूटिंग. तो एज कंप्यूटिंग मॉडल क्या है? दिस मॉडल फोकसेस ऑन प्रोसेसिंग द डेटा एट द एज ऑफ द नेटवर्क. यही बात कर रहे हैं. दिस इज डेटा प्रोसेसिंग विच इज परफॉर्म्ड हेयर at the edge of the network where the data is generated rather than sending everything to the cloud, है ना. तो हर एक चीज को क्लाउड पे भेजने की जगह आप अपने डेटा की लोकल प्रोसेसिंग कराइए नियर द एज डिवाइसेस, एंड देन इट इज कॉल्ड एज कंप्यूटिंग मॉडल. टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज होंगी? एज गेटवेज यूज होंगे, लोकल सर्वर्स एंड AI फ्रेमवर्क, एज AI फ्रेमवर्क यूज होंगे. यहाँ पे AI क्यों लगाना पड़ेगा? व्हाट इज द रोल ऑफ AI हियर? AI फ्रेमवर्क क्यों चाहिए होगा? क्योंकि अगर आपको डेटा की प्री प्रोसेसिंग करनी है, क्या कर रहे हैं? डेटा की प्री प्रोसेसिंग. प्री प्रोसेसिंग मतलब उसमें कुछ AI लगा दो, कोई AI का मॉडल, कोई मशीन लर्निंग की टूल लगा दो जिससे आप डेटा को सेग्रीगेट कर सको, कुछ डेटा को हटा सको, यूजफुल डेटा अलग कर सको. तो कुछ प्री प्रोसेसिंग आपको यहाँ करनी पड़ेगी, जिसके लिए कोई AI फ्रेमवर्क भी आपको रिक्वायर्ड हो सकता है. एग्जाम्पल, an edge device in a smart factory which is analyzing sensor data from machines, taking real time actions without waiting for cloud instruction, है ना. तो एक फैक्ट्री है जिसमें मशीन्स के ऊपर सेंसर्स लगे हैं और वो सेंसर अपना डाटा एज डिवाइस को भेजते हैं. एज गेटवे भी हो सकता है. तो वो जो एज डिवाइस है वो लोकल प्रोसेसिंग करके ही उसको आंसर दे देता है या कंट्रोल एक्शन बता देता है कि ये कर लो फिलहाल, है ना, रादर देन कि हम सारा डाटा क्लाउड पे भेजें, क्लाउड एनालिसिस करे, फिर हमको कंट्रोल एक्शन दे. So this is kind of local pre-processing of data without sending it to cloud. एडवांटेज क्या आ जाएंगे इसके? लो लेटेंसी, ऑब्वियसली डिले का आप कम कर रहे हो एप्लीकेशन में. फास्टर डिसीजन मेकिंग, आपकी डिसीजन मेकिंग फास्टर हो गई, क्योंकि पहले आप एनालिसिस केवल यहीं कर रहे थे, यहाँ पे ही केवल एनालिटिक्स कर रहे थे आप. अब आप एनालिटिक्स यहां भी कर रहे हो इन अ लोकल फॉर्म. ओके, यूज केस कहां आता है इसका? इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में रियल टाइम मॉनिटरिंग और कंट्रोल के लिए. नेक्स्ट वी हैव हाइब्रिड मॉडल. अब हमने इतने सारे मॉडल्स पढ़ लिए डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है. हमने पढ़ लिया D2D, D2C, D2C, हमने पढ़ लिया एज कंप्यूटिंग मॉडल, बैक एंड शेयरिंग मॉडल. अब हाइब्रिड मॉडल क्या होगा? अगर कुछ कुछ मॉडल्स का कॉम्बिनेशन आप यूज कर लो मिला करके, दैट विल बी अ हाइब्रिड मॉडल. ओके, so it combines the multiple deployment models such as using edge computing for immediate processing and cloud for deeper analysis, है ना. ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मैं कह रही हूँ कि डिवाइस टू क्लाउड यूज करो और इसको प्लस कर दो एज के साथ, एज कंप्यूटिंग वाले मॉडल के साथ. बिल्कुल हो सकता है. तो इससे क्या होगा? एज कंप्यूटिंग से आपकी प्रोसेसिंग स्मूथ हो गई, फास्ट हो गई, और फिर आपने क्लाउड पे भी एनालिसिस कर लिया बिगर पिक्चर का, और क्लाउड से भी कुछ डिसीजंस मंगवा लिए. So it will help to improve the quality of your IoT application in which we are integrating or combining different deployment models, resulting in a hybrid model.
For example, combining D2D, D2G and D2C. Example हो गया इसका smart homes, where devices communicate directly for instant actions while the cloud is used for monitoring and remote control. है ना? तो आपका जो स्मार्ट होम है उसमें जो इंडिविजुअल स्मार्ट डिवाइसेस लगे हैं वो आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं. थर्मोस्टेट जो है स्मार्ट सेंसर वो टेम्परेचर वगैरह देख करके स्मार्ट वेंट को ऑर्डर दे रहा है कि भाई कब ऑन होना है कब ऑफ होना है. और ये सारी जो प्रोसेसिंग है ये आप अपने स्मार्टफोन से भी कंट्रोल कर पा रहे हो, मतलब क्लाउड भी इसमें इन्वॉल्व हो गया. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड मॉडल इन विच वी आर कंबाइनिंग डिफरेंट डिप्लॉयमेंट मॉडल्स. एडवांटेजेस क्या होगा इसके? लोकल प्रोसेसिंग एंड क्लाउड बेस्ड एनालिसिस दोनों आपको मिल रहे हैं. बेनिफिट ऑफ दिस इज एफ हेयर, बैलेंसेस द बेनिफिट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी आपको मिल रही है. और यूज केसेस होगा इसके स्मार्ट सिटीज, कनेक्टेड फैक्ट्रीज, हेल्थ केयर सिस्टम्स. These are the various deployment models. Deployment model ends here. लास्ट में हम ये लास्ट स्लाइड देखेंगे. व्हाट आर द की कंसिडरेशंस कि जब भी अगर आप कोई आईओटी डिप्लॉयमेंट मॉडल बनाते हो या उसको यूज करते हो तो उसके की कंसिडरेशंस क्या क्या होने चाहिए. सबसे पहला है स्केलेबिलिटी. स्केलेबिलिटी मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरा कोई भी एप्लीकेशन स्केलेबल तब होता है जब उसमें मैं नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ाती जाऊं और उसके बावजूद भी मेरी एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस पे कोई डाउनफॉल नहीं आना चाहिए. ठीक है. So your deployment model should be scalable. That means it should accommodate increasing number of connected devices without any degradation in the performance. Performance को गिराए बिना वो कितने भी number of devices को accommodate कर सकता है. Scalable होना चाहिए. Latency. Latency का मतलब है delay. Obviously low latency चाहिए आपको, faster communication चाहिए, faster applications चाहिए. So low latency applications are required. Security. Security is a very important aspect. Whatever deployment model you are using, the application developed must be secured in terms of data privacy, in terms of security. Okay, it must be secure. Network connectivity strong होनी चाहिए. Depending upon the environment, rural or urban, जहाँ पे भी आपका model deployed है, the network availability and bandwidth can influence the choice of deployment model. जैसे कि अगर आपका लो कनेक्टिविटी एरिया है तो वहां पे हम D2D मॉडल प्रेफर कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वहां क्लाउड की जरूरत ही नहीं है और हमारे पास इतनी नेटवर्क कनेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं है कि हम क्लाउड उसमें इंक्लूड करा सकें. पावर कंजम्पशन अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैटरी पावर्ड आईओटी डिवाइसेस होते हैं, है ना, जैसे कि सेंसर्स हैं आपके तो वो बैटरी पावर्ड है. जैसे उनकी एक स्पेसिफिक बैटरी लाइफ है वो खत्म होगी तो आपका डिवाइस ऑफ हो जाएगा. ठीक है. सो द डिप्लॉयमेंट मॉडल शुड बी चूजन बेस्ड अपॉन द डिवाइस एनर्जी नीड्स. जो भी आप डिप्लॉयमेंट मॉडल चूज करें इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द एनर्जी नीड्स. कॉस्ट का जो एक पैरामीटर है वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा while choosing your deployment model. क्लाउड बेस्ड मॉडल जनरली डेटा स्टोरेज और बैंडविड्थ करते हैं लेकिन उसको कॉस्टली पड़ता है, whereas gateway or edge based models may have higher initial hardware cost but lower operational cost. Okay, there may be some models which have initially high deployment cost, okay, which is capex, capital expenditure. और एक होता है आपका ओपेक्स विच इज ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर. ठीक है ना. तो कुछ मॉडल्स ऐसे हो सकते हैं जहां पे इनिशियल डिप्लॉयमेंट कॉस्ट हाई है बट आपको लॉन्ग रन में उसका बेनिफिट मिलने वाला है. कुछ मॉडल्स हाइब्रिड टाइप के हो सकते हैं और कुछ मॉडल्स हो सकते हैं जहां पे केपेक्स भी लो है ओपेक्स भी लो है. सो यू नीड टू डिसाइड द डिप्लॉयमेंट मॉडल बेस्ड अपॉन ऑल दीज फैक्टर्स लाइक स्केलेबिलिटी, लेटेंसी, सिक्योरिटी, कितनी कनेक्टिविटी है नेटवर्क की, पावर रिक्वायरमेंट्स क्या है, कॉस्ट क्या है. So this is all about IoT devices. What are IoT devices? How do they communicate? What are the various IoT deployment models? Okay. And what are the key considerations for choosing a particular IoT deployment model for your application? So that's all for today's lecture. Thank you, students.